using conditional statements, right? So our topic is about conditional statements. What we meant about conditional statements, right? So basically, what are conditional statements? Right? So conditional statements are those statements when we have some conditions and we have some pause on our program, right? Pauses like there are some while we are our program, right? So sometimes there are some specific conditions. If that condition gets satisfied, then program goes to path 1, otherwise it goes to path 2, right? So first conditional statement is if statement. And syntax of if statement, just try to understand syntax. If condition 1, and there is some statement, it be a single statement or it may be a more than one statement, right? So the definition of this statement is if the condition of if statement get true, right? Then it executes statement 1, right? It executes all the statements which are present in this block. It's a complete block. We can say it's a if block, right? If there are 10 statements in this if block, all the statements execute only when this condition 1 true, right? Giving an example, if x greater than y, right? Then I am just printing a value, printf x is large, right? So according to our inputs, if I am input a value 5 to x and y equals 2, right? According to this condition, x is greater than y, true, right? Now after this condition, program execute this statement, x is large, according to these values, right? It's clear? This part is clear to you? It's clear to everyone? Okay. So, So, can you explain yes, even if else statement? yes, I am going to now. I am going to discuss about second statement. Just I am discussing right now if statement. What is if statement, right? Okay, some. Our next statement is if else statement, right? And just first take a look on syntax of this statement.
syntax. If condition of, again taking a same example, condition 1, again statement 1, right? Else, always else, else is placed when we have a if statement, right? We use else statement only when if we have already a if statement. We cannot use else alone, right? We cannot use without if, right? And this, right? Now we have again we have a same condition. Now the definition of this statement is if the condition of condition of if block gets true, right? Then it executes it executes if block, or we can say, or statement 1, right? But or, or otherwise otherwise means if the condition of if statement gets false, right? Otherwise case is that if the condition of if block gets false, right? Otherwise, if the condition of, no, if block gets false, right? Then else block executes, right? Definition is clear to you. What is if and if else statement? Now, again taking an example. Yes, if any query you can ask. Again, I have taken a same example, x equals 5 and y equals 2. Right? In this case, condition is my again same. Then here I am writing printf x is large. Right? Printf y is large. Right? Now, according to these inputs, again, condition सर of if block gets true. Yes. हाँ सर, इसमें क्या कहते हैं, एक कंडीशन ट्रू रहेगा और दूसरा कंडीशन फॉल्स रहेगा। हाँ, ऑटोमेटिकली फॉल्स होगा, दोनों में से एक ही चलेगा, या तो इफ ब्लॉक चलेगा या एल्स ब्लॉक चलेगा। जैसे आपने क्या करा है, यस ग्रेटर देन वाई कर लिया है, तो हमें तो पता ही है कि एक्स वाई से ग्रेटर है। यस, बट अगर यहाँ पे इनपुट 12 हो जाती है, बट अभी ये कंडीशन ट्रू होगी? नहीं, वो ट्रू नहीं होगी, अब वाई ग्रेटर हो जाएगा। हाँ, अभी y ग्रेटर हो जाएगा, तो उसके रिस्पेक्टिवली ऑटोमेटिकली y एग्जीक्यूट करेगा, y इज लार्ज। ये कंसेप्ट है इसका। अच्छा, मतलब पहले समय अगर इनको पूरा पता होगा क्या कौन सा ग्रेटर है। हाँ, अब हमारे इनपुट्स के अकॉर्डिंग ही आगे प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, या तो इफ ब्लॉक वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा या एल्स ब्लॉक वाला। राइट? ओके सर, मतलब एक फॉल्स होगा और एक ट्रू होगा। एक ट्रू होगा, हाँ, यस। ओके सर, सारी कंडीशंस नहीं ट्रू होंगी, राइट? ऐसे नेक्स्ट एक और स्टेटमेंट है, राइट? इफ एल्स, राइट?
ये ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आपको पता लगे इफ एल्स, राइट। स्टेटमेंट, just focus on the syntax of this, and definitions are same, right? About syntax, if condition. Now here in previous examples I have only one condition, right? Only condition written with if Yes, block, sir. right? Now I can write multiple statements, multiple conditions, right? Means Like, third condition is for multiple condition. yes, it's for multiple conditions. Okay, sir. Like condition 1, again statement 1, then else if, again if there is a space between else if, right? Now condition 2, right? Again statement 2. Giving an example of this also, again else if. Now I am using else if, right? Statement 3, and so on, right? Then after that else. If we need to write else, then we can write, otherwise we can skip this else portion also, right? It's depend upon our conditions. The architecture is clear to you? फर्स्ट देखो मेरे पास इफ, इसमें क्या है, पहले एक कंडीशन है इफ, सबसे पहले इफ ब्लॉक ही आएगा ऑलवेज, उसके बाद एल्स। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तभी वो मूव करेगा नेक्स्ट पे, इस एल्स ब्लॉक पे। कंडीशन 1 के फॉल्स होने पे ही ये एल्स ब्लॉक के ऊपर मूव करेगा, राइट? जब एल्स के ऊपर आया उसे एक और इफ कंडीशन मिल गई, कंडीशन 2। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसने इसी को एग्जीक्यूट कर देना है, राइट? अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो अगेन ये थर्ड एल्स के ऊपर जाएगा, जंप करेगा, राइट? एंड सो ऑन। अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती ऊपर तो बाय डिफॉल्ट एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। स्टेटमेंट एन, राइट? ये कंसेप्ट क्लियर सभी को? ये कैसे हम यूज कर रहे हैं? सर हेलो सर। हाँ जी सर मतलब इस कंडीशन, मतलब जैसे इसमें मल्टीपल वो कंडीशन है ना, तो अगर जो जैसे कई सारे स्टेटमेंट हो गए, तो पहला स्टेटमेंट जब फॉल्स होगा तभी ये दूसरे स्टेटमेंट पे आएगा। हाँ तभी आएगा। अगर मान लीजिए पहला स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है तो दूसरे स्टेटमेंट में नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, फिर किसी पे नहीं जाएगा। अगर पहला ही ट्रू हो जाता है तो किसी पे नहीं एग्जीक्यूट करेगा। तो मतलब ये यूज करना ही बेकार है एक तरह से तब। क्यों? इसी से तो बेनिफिट है। नहीं, लेट्स सपोज करो अगर मेरे पास 4 कंडीशंस हैं, अगर वो चारों ही चल रही हैं तो मैं 4 एक्स्ट्रा कंडीशंस क्यों लगाऊं, उसको एक में ही डाल देता हूं। अगर चलनी चारों हैं, लेट एग्जांपल देता हूं। मान लो मेरी क्लास में 5 बच्चे हैं, ठीक है? सभी के कुछ ना डिफरेंट ग्रेड्स हैं। किसी के अबव 90 है, किसी के अबव 60 है, किसी के अबव 70 है। तो मैं उनके सेपरेट केसेस बनाऊंगा। अगर लेट्स सपोज करो जो अबव 90 है तो उसे लिखूंगा ए ग्रेड, जो अबव 80 टू 90 के बीच में है उसे बी ग्रेड असाइन करूंगा, जो 70 टू 80 है उसको सी ग्रेड, जो 50 टू 670 है उसे डी ग्रेड, राइट? जो बिलो 35 है उसे फेल। इस तरीके से हमें कंडीशंस सेटिस्फाइड करनी पड़ेंगी। लेकिन सर यहाँ पे जो कंडीशन है वह सब 4 स्टेटमेंट हो गए, लेकिन कंडीशन तो 2 ही फॉलो होगा ना, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। नहीं, कंडीशंस 4 होगी ना। देखो एग्जांपल देता हूँ इसी चीज को, देखो एग्जांपल देखो, ग्रेड्स वाली एग्जांपल लेते हैं, क्लियर होगा। मान लो मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं,
तो सर मैंने एक वेरिएबल ले लिया ग्रेड्स, राइट, या जी ग्रेड्स लेते हैं, पहले एक लेते हैं परसेंटेज, ठीक है, हर बच्चे की परसेंटेज होगी एक तो, राइट, आफ्टर दैट कंडीशन, if percentage जी greater than 90 and percentage less than equals to 100, I am giving a grade value printf a grade, grade A, right, but जी after that else if, right, now percentage greater than 80 and percentage less than equals to 90, अगर किसी की 90 से अबव है, 0.1% भी अगर अबव है तो उसे ए ग्रेड मिलेगा, अगर वो 90 तक है तो उसे क्या कौन सा ग्रेड मिलेगा, प्रिंट एफ ग्रेड बी। बी लाइक इफ थर्ड कंडीशन होगा syntax are परसेंटेज used, ग्रेटर देन Dhruv, what are trying to say? सर वही बोल रहा है कि ट्रू फॉल्स बस नहीं होगा, उसके लिए 4 कंडीशन चाहिए। हाँ, मैं ये देखो ना, अभी ये कंडीशन है ना, अभी ये कंडीशन ट्रू होगी, वो ट्रू कब होगी, जब परसेंटेज मेरी कितनी वैल्यू होगी, जैसे 91 हुई तभी ए हाँ ग्रेड आएगा, क्या हाँ तब ये वो ट्रू एल्स हो चलेगा जाएगा। 91 पे, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। है ना, जब मेरी हाँ वैल्यू होगी 85 तभी मेरा कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, बी ये वाला बी पे आएगा। बी ए पे आएगा। यस सर। ऐसे सोन मैं सी मतलब ग्रेड सी के लिए भी अगर बना जो सकता हूँ। बी वाला कंडीशन नहीं फॉलो करेगा तो सी पे आएगा, सी वाला नहीं करेगा तो बी पे हाँ आएगा। समझ हाँ, गया सर। क्लियर सभी को, सर सभी को क्लियर, हाँ जी, हेलो सर, ये आप कोड हाँ ब्लॉक्स जी, में प्रिंट करवा के दिखा देते हो हमें कि ये आप हाँ कोडिंग मैं कर रहे उधर हो भी मैं कोड उधर भी ब्लॉक्स। मैं करवाऊंगा, उधर भी एग्जीक्यूट करेंगे हम, मैं समझा रहा था तो थोड़ा सा एक्सप्लेन हो गया, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ी सी एग्जांपल रफ एग्जांपल ही हम उसी पे एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। सर आप एक बता और सकते हैं स्टेटमेंट के लिए, कौन सी आईडीई हाँ जी, बेटर रहती है, मतलब कि किसमें हम कोडिंग स्टार्ट करें इसी प्रोग्रामिंग की, आईडीई वैसे तो कौन सी डेव बेटर है? सी प्लस सारी अच्छी है, डेव सी प्लस प्लस भी कर सकते हो, कोड ब्लॉक्स भी कर सकते हो, ठीक है, आप किस में करते हो सर? हाँ जी, आप किस में करते हो? आप किस में, मतलब कि मैं सिखाओगे हमें? मैं दोनों देव सी यूज सी करता प्लस हूँ, में। मैं देव, हाँ वो यूज कर लो, इजी है, इजीली आप यूज कर पाओगे, ठीक राइट। है सर। ऐसे लास्ट में मैंने एक एल्स बना दिया, अगर मान लो ऊपर की कोई भी कंडीशन नहीं हुई, मीन्स 60 से लेस देन ग्रेड्स हुए, तो उनको मैं क्या करूंगा, फेल कंडीशन प्रोवाइड कर दूंगा। लाइक हम जैसे एग्जाम देते हैं कोई भी, राइट, गवर्नमेंट का एग्जाम, उसकी एक कट ऑफ रेशियो होती है, राइट, तो अगर वो रेशियो क्रॉस करेंगे तभी हम पास है, अदरवाइज हम फेल है सारे, वो मोस्टली 50% होती है या 60%, अबव 60% होती है, राइट, है ना, अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न, राइट, तो हम उस जगह पे इस तरीके की कंडीशन लगाते हैं और सॉर्ट कर लेते हैं लिस्ट, तो किसी के लिए अभी ए ग्रेड आएगा, किसी को सी मिलेगा, किसी को फेल होगा कोई बच्चा, राइट, अकॉर्डिंग टू मार्क्स। ये क्लियर सभी को, इट्स क्लियर टू एवरीवन, राइट। एक दो और स्टेटमेंट्स हैं, फर्स्ट एक तो रिलेटेड है, नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ठीक है, नेस्टेड इफ में क्या होता है, जैसे मान के चलो मेरी एक कंडीशन है, जस्ट अभी समझना, उसके बाद हमने प्रैक्टिकली सारा करना है। इस कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन है, सब कंडीशन, जिसे हम बोलते हैं नेस्टेड कंडीशन,
राइट। अभी ये वाली कंडीशन कब एग्जीक्यूट करेगी, जब फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी, राइट। इस चीज को बोलते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर ऑफ इफ स्टेटमेंट, राइट। और देन हम एल्स भी लगा सकते हैं यहाँ पे, इवन एल्स के अंदर भी कंडीशन आ सकती है कोई, एनी कंडीशन, कंडीशन 3, राइट। देन यस मीन्स ये तभी एग्जीक्यूट करेंगे अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी दोनों में से। इट्स क्लियर, इट्स कॉल्ड अ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। yes, inside of if, right, and there is some drawback if we are using like this. It's a drawback, it's a case related to our third, like if else, right। अगर हम सारी कंडीशन यूज कर लें, इसे हम बोलते हैं if ladder, if ladder, राइट। मल्टीपल हमारे पास क्या है, मल्टीपल इफ कंडीशंस ही है, तब क्या होगा, उस केस में क्या होगा, जिस केस समझना है और हमने इस चीज को अवॉइड करना है जितना हम कर सकते हैं, राइट। समटाइम्स यही यूज होता है, ठीक है, बट इसको हम अगर प्रॉपर वे में लगाएंगे तभी ये एग्जीक्यूट करेगा, राइट। इसे समझो। अभी कंडीशन, मेरे पास एक कंडीशन है 1, एक कंडीशन 2, एक कंडीशन 3, राइट। अगर जब किसी ने क्वेश्चन पूछा था लाइक अगर सारी कंडीशन ट्रू हो जाएंगी, है ना, इससे तो सारी कंडीशन ट्रू हो जाएंगी, है ना, तो उससे नहीं हो रही थी, बट अभी ड्रॉबैक है। अगर मेरी अभी सारी कंडीशन ट्रू हो रही है तो मैं कंडीशन डाल के प्रोग्राम को कॉम्प्लेक्स क्यों करना, राइट। तो इसमें क्या होगा, अगर ये भी कंडीशन ट्रू होगी और ये भी कंडीशन ट्रू होगी और ये सारी कंडीशन ट्रू हो जाएंगी, तो इस केस में हमारे पास जब हमें पता है कि हमने उसके ये तब यूज करना है जब हमारी सारी कंडीशंस ट्रू हो रही है या मैक्सिमम कंडीशंस हमारी ट्रू होंगी, राइट। समझ रहे हो, उस टाइम पे ये क्वेश्चन इस टाइप इफ लैडर को यूज करना है। लाइक अगर आप इफ एल्स लगा लोगे, जब भी एल्स वर्ड आया यूज होगा तब एल्स का मीनिंग क्या है, अगर इफ ब्लॉक नहीं चलेगा तब एल्स चलेगा। बट इस केस में क्या होगा, मेरी सारी कंडीशंस भी चल सकती हैं, मेरी एक कंडीशन भी चल सकती है सिंगल। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरी एक कंडीशन है x ग्रेटर देन y, एक ही कंडीशन है सभी पे, राइट। मैंने इस चीज को यूज कर लिया x ग्रेटर देन y, और यहाँ पे भी, तो इस केस में मेरी सारी कंडीशंस चल जाएंगी, तब मैंने यूज करना है। बट हाँ, अगर मुझे लगता है कि समटाइम्स मेरी ये सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगी और समटाइम्स नहीं करेंगी, तब भी मैं यूज कर सकता हूँ। बट अगर मैं एट ए टाइम एक ही स्टेटमेंट कंडीशन चलेगी, तब मैं इस इफ ब्लॉक को, इफ लैडर को मैं अवॉइड करूंगा। उस केस पे मैं क्या लगाऊंगा, इफ एल्स स्टेटमेंट, राइट। ये क्लियर हुआ सभी को? सर यस, हाँ जी बोलो। सर मैं बोल रहा हूँ कि मतलब एक ही स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करने से बेनिफिट क्या है, मतलब यस ग्रेटर देन वाई, यस ग्रेटर देन वाई, एक ही स्टेटमेंट को रिपीट करने से क्या बेनिफिट है? बेनिफिट कोई नहीं, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर लेट्स सपोज करो एक ही स्टेटमेंट है और अकॉर्डिंग टू इधर पहली स्टेटमेंट ये चली, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट्स है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग ये चल रहा है, ये सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस टाइम पे। मैं अच्छा ये कह रहा हूँ तब ये यूज करना, अदरवाइज ये नहीं यूज करना। अच्छा सर, ठीक है? जब ये वाला जो पहला वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा ट्रू वाला, तो क्या दूसरे स्टेप पर वो आएगा? हाँ आएगा, ये हर एक अच्छा स्टेट को चेक करेगा, चाहे वो अच्छा चले चाहे ना चले। इसने लेट्स सपोज करो ये पूरा टास्क 3 स्टेटमेंट्स है ना, तो तीनों स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए इसे 3 सेकंड्स चाहिए, राइट। इस केस में क्या होगा, ये 3 सेकंड्स लेगा ही लेगा, चाहे वो ट्रू हो चाहे ना हो ट्रू,
राइट। मतलब यही अगर लेट्स डिफरेंस है सपोज इफ एल्स से ना। हाँ, इफ एल्स में क्या ये होता था सर, अगर जो मान लीजिए पहला ट्रू होता था तो उसमें आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, उसमें ये 1 सेकंड में भी खत्म हो सकता है और ये 5 सेकंड्स भी ले सकता है। जैसे सभी को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, तो 5 सेकंड लगे। ठीक है, अगर पहली स्टेटमेंट ट्रू होगी तो वहां से टर्मिनेट हो जाएगा, इससे आगे नहीं चलेगा, वो बाहर आ जाएगा, जंप सीधा यहाँ पे करेगा, फर्स्ट के बाद यहाँ मतलब पे। सर मतलब कुल मतलब इसको मतलब है ट्रू से, मतलब जहां इसको ट्रू मिलेगा ट्रू वहां से, टर्मिनेट कर देगा। हाँ, बस इसमें क्या होगा, जब तक ट्रू मिलता जाएगा वो आगे चलता जाएगा, हाँ, अगर मान चाहे लीजिए ट्रू बीच में मिले चाहे फॉल्स मिल फॉल्स जाता हो, तो तभी ये जंप करेगा इधर। सर एक क्वेश्चन है मेरा, मान लीजिए 3 स्टेटमेंट है, ठीक है। अब 3 स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट ट्रू है और बीच वाला स्टेटमेंट फॉल्स है और तीसरा स्टेटमेंट ट्रू है, तब क्या होगा? तब स्टेटमेंट 1 को पहले चेक करेगा, ये ट्रू हो जाएगा, इसे एग्जीक्यूट कर देगा, राइट। हाँ, दूसरा फॉल्स उसके हो बाद जाएगा तो रुक स्टेटमेंट जाएगा वो। नहीं, इसे चेक करेगा, इसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि ये फॉल्स हो गया, तो फिर यहाँ पे अच्छा, आ जाएगा, फिर ये ट्रू हो गया तो इसने थर्ड स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट कर देना, मतलब इस ये कमांड का एग्जीक्यूशन। केवल एक ही वर्क है कि मतलब जो ट्रू रहेगा उसी को एग्जीक्यूट करेगा। हाँ बस, ओके सर, थैंक यू सर। हाँ ठीक है। राइट नाउ आई एम मूविंग टू प्रैक्टिकल, राइट। अभी कोई डाउट कंसेप्ट में? नो सर। ठीक है, तो अभी मैं प्रैक्टिकल शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सर हम लोग भी साथ में कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, कर सकते हो, कर सकते हो, बस ये ध्यान रखना कि हाँ, मुश्किल ना आए बस करते वक्त, क्योंकि मेरी स्पीड थोड़ी सी फास्ट होगी है ना, बस ये हाँ ध्यान सर, रखना। मुश्किल आएगी तो जस्ट आपसे पूछेंगे ना, इसीलिए करने के लिए बोल रहे हाँ हाँ, फर्स्ट है मेरा इफ स्टेटमेंट, हैं। हाँ राइट। अगेन पहले एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक वेरिएबल लिया इंट x इक्वल्स 12। मेरा क्वेश्चन है whether this number x, this variable is a positive number, right, or it's a negative number. फर्स्ट क्वेश्चन ये है, चेक सर, पॉजिटिव है। नंबर इज अ पॉजिटिव, बट पता कैसे लगा इट्स अ पॉजिटिव? उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ना, तो पता चलेगा। कैसे, क्या लिखेंगे, क्या कंडीशन क्या लगाएं कि वो पॉजिटिव हो? इफ x इज पॉजिटिव। पॉजिटिव, व्हाट इट मींस पॉजिटिव? इट्स अ वर्ड, कंपाइलर के लिए ये एक वर्ड है इंग्लिश का पॉजिटिव, उसे कैसे तो पता लगेगा, क्या लॉजिक लगाएं? हाँ, वो x ग्रेटर देन 0 सही बोला, x ग्रेटर देन 0। यस, हाँ, नाउ इट्स राइट, एक्स ग्रेटर देन 0, राइट। और वही सर, अगर जो निगेटिव होता तो s लेस देन 0 ले लेते। यस, बट अभी हमें दोनों कंडीशन जरूरत नहीं लेने की, हम क्या लिखेंगे, एक्स ग्रेटर देन 0। अगर मुझे अकेला पॉजिटिव नंबर चाहिए, लेट्स सपोज करो मेरे पास इफ कंडीशन ये है कि मैंने चेक करना है कि पॉजिटिव नंबर ही है बस हो, राइट, नेगेटिव के मतलब बारे में बात ही नहीं करनी। मतलब ये चेक एक्स इज करना अ, है पॉजिटिव है कि नहीं है। हाँ बस पॉजिटिव चेक करना, पॉजिटिविटी चेक करनी है कि वो नंबर पॉजिटिव है कि नहीं है, राइट। तो मैं अकेला इफ ब्लॉक ही लगाऊंगा, राइट, क्योंकि क्योंकि एक एल्स ही स्टेटमेंट है लगाने ना। से, हाँ, एल्स लगाने से क्या होगा, मेरे पास नेगेटिव वाला भी आंसर आ सकता है, मैं बट नेगेटिव आउटपुट नहीं चाहिए मुझे, राइट। जैसे अभी ये सेकंड केस बन जाएगा हमारा इफ एल्स वाला, एक्स इज अ नेगेटिव नंबर। नेगेटिव मीन्स ये ऑटोमेटिकली अगर ये पॉजिटिव ना हुआ तो क्या होगा, लेस देन 0 होगा, है ना। सर यहीं पे टर्मिनेट कर देगा ना वो। हाँ, देखो अभी मैं लिख रहा हूँ, डायनेमिक रन टाइम पे इनपुट करेंगे एंटर एनी वैल्यू, ताकि एग्जीक्यूट हम कर पाए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के साथ टेस्ट करने के लिए। स्कैन एफ %d, सर हाँ जी, सर जैसे हमें फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए हम अलग से जैसे इफ का यूज करके बना सकते हैं क्या? मतलब एक ही मतलब इफ से ही होगा कि एल्स से होगा कि दोनों से हो सकता है? 1 सेकेंड,
मैं विंडो दिख रही है, यस कंपाइलर सर, विजिबल है सभी को? यस सर। कंडीशन से मतलब है ना भाई, कंडीशन कितना दे रहे हो? ओके, कंपाइलर सभी को विजिबल है ना? जयीश हाँ बोल रहा हूँ ओके भाई, फाइन। कंडीशन से मतलब है ना, एक कंडीशन दे रहे हो इफ यूज करोगे, अगर एक से ज्यादा दे रहे हो तो इफ एल्स यूज करोगे। देखो अभी x को मैं कोई इनपुट दूंगा, लेट्स सपोज करो 34, ये एग्जीक्यूट हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, राइट? तो ये x इज पॉजिटिव नंबर, आउटपुट विजिबल सभी को? अगेन मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ विद नेगेटिव वैल्यू -23, तो आउटपुट इज x इज नेगेटिव, यस? इट्स क्लियर टू एवरीवन? बट अगर मैं इनपुट क्या कर रहा हूँ 0, तो क्या आंसर आएगा? स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर, स्क्रीन इज विजिबल। ओके फाइन। अभी इसकी आउटपुट क्या आएगी अगर इफ आई एम इनपुट अ 0 वैल्यू टू x? It's negative, right? But according to mathematics, is 0 is a negative value? No, right? 0 is our neutral value, right? So here I am Yes, using sir. a third, I have to use a third condition, right? I am using right now if block. If x less than 0, then it's a negative, right? Else x is a neutral value. Right? Now it's clear to everyone. I am executing this code. Now I am in the value 0. Automatically it goes to the third else case. X is a neutral value. Right? It's clear to everyone right now? I am taking another example. Right? Okay. So our next example, this question is about check the number is positive, negative, or neutral. Right? In this way we can elaborate our question step by step. Right? Now I am giving another example. Here I have no issue if I am deleting this 14 value, right? Because again scan, I am using a scanner. Dear, mute yourself. Right? Now our next example is I am going to check whether I have a 3 variables x, y, z, right? And what I need to calculate, I need to find which one is largest, right? Find which one is largest.
I'm taking an example x, y, z, right? Printf, enter values to x, y, and z, right? Scanf %d, right? अभी मैं तीनों वेरिएबल्स को एक ही स्कैनफ यूज करके वैल्यू इनपुट करूंगा %d मैंने तीनों %d लगाए विदाउट एनी स्पेस, ये ध्यान रखना, विदाउट एनी स्पेस, राइट? देन आफ्टर दैट एड्रेस ऑफ x, एड्रेस ऑफ y, कॉमा एड्रेस ऑफ z। इस तरह मैं तीनों वेरिएबल्स को वैल्यूज इनपुट कर सकता हूँ। इट्स क्लियर? Yes, it's a case sensitive language. C is a case sensitive language, right? Now if I need to find largest from x, if I want x is my largest number, right? I am supposing right now x is my largest number, and now what kind of condition I will write in this if block? Anyone suggest me? Anyone suggest me what condition I will write for if x is largest from y and z? Right? No, almost right. X greater than y and x greater than z, right? Now I can say that it's a largest number is the largest one, and I am printing the value of x. Right? Now else if, now I am using else if, right? Here I am using x greater than, sorry, y greater than z, right? Should I need to write, or I need to compare y again with the x, like this way, y greater than x? Should I need to write this statement, or I can skip this statement, just only this conditional? Can I skip this condition, y greater than x? Yes, we can skip this statement if we need to skip, right? Here we can write printf y is the largest one, right? Then after that else. By default, here I can say that z is my largest number. By default, I can say z is my largest number, right? Now I am executing this.
I am inputting a value. Let's suppose 30, 14, now 16. Now according to my values, Z is my largest number and its value is 16, right? Again executing with some different values, 45, 29 and 34. Now X is my largest number. Output is X is the largest one and output is 45. Right? Here we can, if we need to skip. Now why we skip this? Right? Because we are using else if statement. Right? We are using which statement? If else statement, right? That's why we can skip this condition, x y greater than x. We can skip this statement because we are using if else statement. But if I am using if statement, then I can't skip this statement, right? Let's take an example. Now it's clear to you, right? If I am using this z greater than x and z greater than y, right? Now I am using this. Now y is the largest one with value 46, right? But if I am skipping this value, now it only compares with z. Y only compares with z. 36, 3 and 12. Now I am receiving two outputs. First output is x is largest one and next one is y is largest one. It's clear to everyone? This example is clear to everyone. Just respond to my communication. It is clear to everyone or you still have an issue? Yes, sir. Clear to everyone. Okay, fine. Now I am giving you a task. You all have to find second largest number. It's your task. You all have to find second largest number, right? Right? Now you all can left this session, right? We are our next topic is about this conditional statements and we are doing some more examples, right, in our next session, right? You all have to find, I am giving an example, you all have to perform, you all have to find which one is the second largest number, right? So all can leave this session.